तो एडवर्ब हमें बेटा बेसिकली बता क्या रहा है? एडवर्ब कहता है कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किस टाइम पे काम किया। फॉर एग्जाम्पल शी इज सिंगिंग ब्यूटिफुली, ठीक है। वी मीट tomorrow, मतलब it is actually not focusing on she, it is not actually focusing on we, but it is actually focusing on the work they did. तो हमेशा basically you have to understand one thing, adverb of time is actually telling us when an action happened. If I am creating types of adverb and if I am creating with the block, it is very easy to understand and it is very easy to read, it is very easy to recall the chapter. So these pointers you have to understand, you have to keep in mind for making the quick notes. Okay. Hello everyone, welcome to Physics Wala. My name is Rubena Talwar and this is the one short lecture for class 7th ICSE adverbs. So let us begin and understand what do we mean by the adverbs. Now first of all we are clear with the term that what are verbs, है ना? We have cleared with the terms that what are verbs. In the last lecture of verbs, we have seen key verbs are of different criteria. Now, when we will be doing the tenses, we will understand the basic meaning of the helping verb. And then we are going to understand with the main verb one. But if we are considering verb refer to an action, state of being, and possession. So, we are able to understand that verb are of different categories. First one is action verbs that were only the main verb, है ना? After that we understood that okay, there are kind of transitive, intransitive verbs as well, है ना? Linking verb as well, helping verbs as well. Now we will be understanding what do we mean by adverb, है ना? Verb meaning is clear, है ना? वर्ब मतलब समझ में आ गया कि ये एक्शन ऑफ बीइंग है, एक्शन है, स्टेट ऑफ बीइंग है, ये पोजेशन है। लेकिन अब ये एड वर्ब जो एडी बीच में लगा है, स्टार्टिंग में लगा है, उसका क्या मतलब है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। Okay, so let's understand. Now adverb is a word that modifies or describe a verb, an adjective और अनदर एडवर्ब। इसे हिंदी में क्रिया विशेषण बोला जाता है। अब यहां पर समझिए कि कोई चीज जो होगी वो वर्ब को डिफाइन कर रही होगी, है ना? मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप भाग रहे हैं और आप क्विकली, है ना, तो रन क्विकली, तो यहां पर भाग रहे हो, जल्दी जल्दी भाग रहे हो, तो अब ये वर्ब को डिफाइन करेगा, है ना? अब एक चीज तो आपने यहां पर समझी थी, जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को बताते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं, है ना? लेकिन कोई तो चीज होगी जो एडजेक्टिव को भी डिफाइन कर रही होगी, कोई तो चीज होगी जो वर्ब को भी डिफाइन कर रही होगी, है ना? अब कोई भी चीज जो अगर हम यहाँ पे एडवर्ब के बारे में बात करते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव, है ना, हमारे एडजेक्टिव, हमारे वर्ब और या हम दूसरे एडवर्ब को बताते हैं, ठीक है, उनको हम एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब का मतलब क्या है? Adverb has the basic meaning. Adverb has the basic meaning that they are the word that are modifying or they are the word that are describing a verb or an action, है ना? That is the verb only, right? Or they are also explaining the meaning of adjectives. Okay, so let's understand with the help of definition. Now, an adverb. If you are talking about an adverb, adverb is a word. Adverb क्या है? एक ऐसा word that modifies or describe a verb. जो क्या कर रहा है? एक verb को describe कर रहा है, verb की quality बता रहा है, verb के मेथड को बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि अगर आप भाग रहे हैं, है ना, रन, अगर आप भागो तो भागो वो भी क्विकली, जल्दी जल्दी भागो, रन क्विकली। तो यहां पर ये वर्ब को ही डिफाइन कर रहा है। एडवर्ब को भी कर सकता है या अनदर एडवर्ब को भी कर सकता है मतलब, और या कोई एडजेक्टिव को भी डिफाइन कर सकता है। तो अब यहां पर मतलब क्या है? इट टेल्स अस, ये हमें ये बताता है हाउ, कैसे, व्हेन, कब, वेयर, हाउ ऑफन और एट व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन हैपेंस। तो एडवर्ब हमें बेटा बेसिकली बता क्या रहा है? एडवर्ब कहता है कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ,
किस टाइम पे काम किया, है ना, किस हद तक किया, ठीक है। सो मतलब क्या है, एडवर्ब इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द वर्ड्स, whether it could be an action, whether it could be another adverb, whether it could be an adjective that are defining the quality of our noun. Okay, now let's see. She sings beautifully. वह गाती है, कैसे गाती है, सुंदर तरीके से। सो यहाँ पे सिंग मतलब ब्यूटिफुली, सो इट टेल अस हाउ, कैसे गाती है, हाउ शी सिंग्स ब्यूटिफुली, कैसे गाती है, बहुत प्यार से गाती है, तो ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्स हाउ शी सिंग्स। Understood? Now next one, next thing we can understand. We will meet tomorrow. हम मिलेंगे, है ना, हम मिलेंगे मतलब एक्शन वर्ब है। कब मिलेंगे, कल मिलेंगे, tomorrow। हम मिलेंगे लेकिन कब मिलेंगे, tomorrow। tomorrow हमें कैसे बताता है, when, कब मिलना है, कल। तो मतलब मैम एडजेक्टिव्स को तो नाउन की क्वालिटी बता रहा था, नंबर्स के बारे में बता रहा था, क्वांटिटेटिव बता रहा था, क्वालिटेटिव बता रहा था ना, है ना। अब ये नाउन को नहीं बता रहा, ये काम को बता रहा है। क्या कर रहा है, ये नाउन को नहीं बता रहा। कहते हैं ना ना ना, नाउन का काम, नाउन को बताने के लिए एडजेक्टिव है ना, हम तो वर्ब को बताएंगे भाई। हम किसको बताएंगे, वर्ब को बताएंगे, ठीक है। तो शी सिंग्स ब्यूटिफुली, ब्यूटिफुली डिस्क्राइब हाउ शी सिंग्स, है ना। और वी विल मीट टुमारो, कब, व्हेन, कब मिलेंगे, कल मिलेंगे, ठीक है। वी विल मीट टुमारो। द कैट इज सिटिंग आउटसाइड, कैट कहां बैठी है, बाहर बैठी है, तो कहां बैठी है, वेयर, आउटसाइड, है ना, इज सिटिंग आउटसाइड। बट बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग दैट दे आर डिस्क्राइबिंग अ नाउन, नॉट they are describing a verb. It is actually describing or giving more information about the verb. For example, she is singing beautifully, ठीक है। we meet tomorrow, मतलब it is actually not focusing on she, it is not actually focusing on we, but it is actually focusing on the work they did. Okay, now he is very intelligent. वो क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो very describe the adjective इंटेलिजेंट। वेरी क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव इंटेलिजेंट को। क्लियर? नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर, हाउ, ठीक है, दे टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है कि कैसे कोई एक्शन हुआ है, हाउ, ठीक है, ठीक है। तो हाउ का मीनिंग कैसे हुआ, है ना, कैसे हुआ। द बॉय रैन भागा वो, क्विकली, कैसे भागा, क्विकली, ठीक है। शी स्पोक पोलाइटली, कैसे बोला, पोलाइटली बोला। द बेबी स्लेप्ट, बच्चा कैसे सोया, शांतिपूर्वक, मतलब पीसफुली सोया। सो यू हैव टू जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, दैट इज हाउ, ठीक है। कैसे बोलोगे, एक ही क्वेश्चन आप पूछोगे अपने आप से, वो है हाउ, कैसे, ठीक है। तो जब भी आपने हाउ देखा, ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन आएगा, इट इज गोइंग टू टेल यू दी मैनर, ठीक है, कैसे हुआ कोई काम। अच्छा, व्हेन मतलब टाइम, व्हेन टाइम। तो जब भी आपको कोई व्हेन क्वेश्चन आएगा, तो आप ये समझो कि ये टाइम को बता रहा है, ठीक है। दे टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपन, कब हुआ, है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम इज टेलिंग अस कि कोई भी एक्शन कब हुआ है, कोई भी एक्शन कब हुआ है। सो दे टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस, कब कोई एक्शन हुआ है, ठीक है। आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू, कब कॉल करेगा, बाद में कॉल करेगा। वी विजिटेड जू, कब विजिट किया हमने, कल किया था, ठीक है। शी अराइव्ड अर्ली, कब आई, अर्ली, जल्दी आई, कब आई, जल्दी आई। तो हमेशा बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एडवर्ब ऑफ टाइम इज एक्चुअली टेलिंग अस व्हेन एन एक्शन हैपेंड, है ना, कब कोई एक्शन हुआ है, ठीक है। आई विल कॉल यू, कब कॉल करोगे, बाद में, ठीक है। वी विजिटेड जू, कब गए थे, येस्टरडे। शी अराइव्ड अर्ली, वो कब आई, जल्दी आई, ठीक है। तो क्वेश्चन यू हैव टू आंसर इज व्हेन। नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कोई भी एक्शन कब हुआ है, नहीं कहां हुआ है। देखो प्लेस से हमें समझ में आ रहा है वेयर, प्लेस कहां पे, वेयर,
प्लेस कहाँ पे, मतलब प्लेस से तो आपको अपने आप ही समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन हियर इज वेयर, ठीक है, क्वेश्चन हियर इज वेयर। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर एन एक्शन हैपेंड। तो अभी तक हमने कैसे क्या समझा, कैसे हुआ, हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर, कब हुआ, व्हेन, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, कहाँ हुआ, वेयर, adverb of place, adverb of place. So they tell us where an action happened, कौन कब कहाँ कोई एक्शन हुआ, ठीक है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं। कहाँ आना है, इधर आना है, कम हियर, इधर आना है। द बर्ड्स फ्लू अवे, जो बर्ड्स हैं वो उड़ गई, कहाँ पे, दूर कहीं, उड़ गई कहाँ, दूर कहीं। द बर्ड फ्लू अवे, यहां तक समझ में आ गया। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस रेफर्स टू समथिंग दैट हैज हैपेंड वेयर, है ना, कहाँ पे कोई काम हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए जी आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स अ टास्क डन इन मैक कितनी बार, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। तो अब मैम क्या यहाँ पे हम न्यूमरल एडवर्ब्स नहीं बोल सकते, वहां पे तो नंबर, यहाँ वहां पे हम नंबर्स इसलिए बोलते थे क्योंकि 3 4 पेन 5 6 7 8 ऐसा था, है ना, कार्डिनल या ऑर्डिनल नंबर्स को यूज करते थे। अब फ्रीक्वेंसी में ये हो रहा है कि कब हो रहा है कोई काम, हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं, तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। तो ये बताता है हाउ ऑफन, सो यू हैव टू आस्क क्वेश्चन हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस, कौन सा एक्शन कितनी जल्दी या किस हद तक या कब कब हुआ है, ठीक है। आई ऑलवेज फिनिश माई होमवर्क, ठीक है, आप बोलोगे हाउ ऑफन, कब आप कितनी बार आप काम अपना होमवर्क जो है वो फिनिश कर लेते हैं, हमेशा मैम, है ना, कितनी बार, मैंने कहा हमेशा। ही समटाइम्स विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट, कितनी बार आप पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से या ग्रैंड माँ से मिलने आते हैं, तो कभी कभी आ जाता हूँ, है ना, फ्रीक्वेंसी कभी कभी, कभी कभी, ठीक है। सो ही विजिटेड हिज ग्रैंड माँ, ठीक है, समटाइम्स। दे नेवर टेल लाई, कितनी बार आप झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं मैम, कभी नहीं। कितनी बार आप झूठ बोलते हो, कितनी बार बताना मैम, वैसे तो ऑलवेज, बट यस हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं नेवर, है ना, वैसे तो हमेशा, लेकिन हाँ यहाँ पर हम बोल सकते हैं नेवर, ठीक है, क्या बोलोगे, नेवर। सो दे नेवर टेल्स लाई, दे नेवर टेल्स लाई, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। लेकिन उससे पहले अगर मुझे आपको एक चीज करनी है, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री करने के बाद फिर हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब बताता है कितना या किस हद तक। अब देखो फ्रीक्वेंसी बता रहे कितनी बार, है ना, और डिग्री बता रहे किस हद तक, ठीक है, किस हद तक। द वाटर इज वेरी कोल्ड, कितना है, किस हद तक पानी ठंडा है, बहुत हद तक, बहुत ज्यादा, है ना। तो मतलब क्या है, हाउ मच और एट व्हाट एक्सटेंट, यू हैव टू आस्क हाउ मच द वाटर इज कॉल्ड वेरी, मैम शी इज क्वाइट हैप्पी, शी इज क्वाइट हैप्पी, मैम ये थोड़ी बहुत खुश है ना। द मूवी वॉज टू लॉन्ग, मूवी जो थी मैम बहुत लंबी थी, कितनी लंबी थी, बहुत ज्यादा यार मैम। एट व्हाट एक्सटेंट मतलब कोई तो टाइम पीरियड होगा ना मैम, बहुत लंबी थी, ठीक है। एट व्हाट एक्सटेंट, टू लॉन्ग, क्या बोलोगे, द मूवी वॉज टू लॉन्ग, क्लियर हो गया आपको यहाँ पर। तो चलिए अब एक बारी हम एडवर्ब्स के टाइप्स को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, ओके। हमने यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स को समझा, है ना, हमने यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स को समझा। चलिए अब हम यहाँ पे लिख लें, पहला था एडवर्ब ऑफ मैनर,
क्या था? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो चलिए साथ साथ लिखते हैं पहले, है ना। आपके सामने ही मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ, तो आप अपने नोट्स को ऐसे बना सकते हैं, है ना, जैसे मैं आपके सामने स्क्रीन पर नोट्स बना रही हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू, जिस तरीके से मैं आपको आगे नोट्स बना रही हूँ, तो आप ये समझिए कि आपको एग्जाम के टाइम पे बस इन्हीं नोट्स को पढ़ना होगा। और हाँ, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया, कि जब भी आपका कोई भी टॉपिक होता है, एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। Whenever you have to create the quick notes, first of all, it should depend upon your understanding. Okay, first rule, when you are making the when you are making the quick notes, okay, first of all, the rule must be that you should make the quick note as per your understanding. Okay, you have to make the quick notes as per your understanding, means something which you know. Clear? Okay, first of all we should write, then I will be giving you the crux more. Okay, so the first one is adverb of चलिए देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ओके। फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। नाउ after this, more understanding you must be having how to make quick notes in English. So the first step, you have to understand, everyone just have a look on the screen, okay. The first thing which I told you, that you have to make the quick notes first of all as per your understanding, means the knowledge which you have, rather than just copying from someone else. Okay, the type, the method you have employed on yourself to understand some things. Okay, you have to make the quick notes as per your understanding. Clear? After making the quick notes, these quick notes must be read at least 1 or 2 times daily. Okay, if I am saying you that you have to read the quick notes, it will hardly take 5 minutes, na? है ना। So adverb of manner, adverb of manner means how, है ना। Adverb of manner refers to how. You have to ask. Adverb of time, when, बहुत बढ़िया। Adverb of place, where, बहुत बढ़िया। Adverb of frequency, how often, है ना, how often, okay. Adverb of degree, how या to how much extent, है ना, how much या और what extent, how much और at what extent, ठीक है, ठीक है। तो यही चीजें मैंने यहां पर भी यूज करी है, how often, ठीक है, ओके, क्लियर। नाउ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल्स, ब्यूटिफुली, ठीक है, पीसफुली, ओके, देन क्विकली, है ना, ओके। व्हेन, एडवर्ब ऑफ टाइम, एग्जाम्पल, adverb of time, when, yesterday, tomorrow, है ना, out, okay, so this could be the place, है ना, more things can be written here, right, so 2 only I am giving you, place, inside, outside, ठीक है, example, you can write at anything, है ना, outside, on the left one,
on the right one, on the top floor, है ना? How often? Always, sometimes, never, ठीक है? Very, extreme, ठीक है? And one thing or you can write two. Huh? So these are the things that you have to write. Now by this, है ना? Okay. Let me write it more clearly here. Very, quite, ठीक है? Two are the example. Okay. Now this is the actually the pointer that I want to explain here. After seeing the quick note, or you can see the flow chart which is written on the screen and which I created in front of you, I want to give you few tips again. Okay, means I want to give you few tips regarding the making of the quick notes. The first thing we have to keep in mind that quick notes must be prepared, or the flow chart must be prepared for the chapter as per our understanding. Means the method we use to learn, the method we use to understand the topic, by that method only we have to create the flow chart. Second, it is the quick note, है ना? The second thing we have to keep in mind, it is a quick note. So only the basic pointers, or only the important basic pointer must be written on the flow chart or the quick notes, so that by the word you could be able to understand, you could be able to recall the whole concept. Okay. Third one, the presentation of the quick note, है ना? The presentation of the quick note must be clean, है ना? It shouldn't be like cumbersome one. It should be very clean. It should be readable to anybody, but yes, it should be understandable to everyone, with you also. Okay. So for example, if I am creating types of adverb and if I am creating with the blocks, it is very easy to understand, and it is very easy to read. It is very easy to recall the chapter. So these pointers you have to understand, you have to keep in mind for making the quick notes. Okay. So let's begin now. Now after this we should understand the position of adverb, है ना? कि sentence में adverb की क्या position होनी चाहिए, ठीक है? Position of adverb. Now beginning of the sentence, ठीक है? मिडल एंड ऑफ द सेंटेंस. तो आप ये समझे कि एडवर्ब की पोजीशन कोई डिफाइंड नहीं है ना? एडवर्ब की पोजीशन कोई डिफाइंड नहीं है, बल्कि एडवर्ब की पोजीशन हम ये देख सकते हैं, इट कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम इन द सेंटेंस, वेदर बिगनिंग, वेदर मिडल और वेदर द एंड. सो कभी ये नहीं समझना है कि अरे अगर ये लास्ट में आया है तो इट मीन्स ये एडजेक्टिव होगा. नहीं, आपको ये पॉइंट को बहुत ध्यान से रखना है कि एडवर्ब मतलब जो वर्ब की विशेषता बताता है, जो वर्ब की क्वालिटी डिस्क्राइब करता है, ठीक है? सो बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, yesterday we went to the park. Middle of the sentence, she always arrives on time. ठीक है? End of the day, we worked hard. कैसे काम किया आपने? We worked hard. She arrives early, always arrives. तो ये फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल हो गया, है ना? ये फ्रीक्वेंसी का है, how often. ठीक है? Yesterday we went to the park. When you went to the park? Yesterday. ठीक है? Okay. When? Yesterday. Clear? So this thing you have to keep in mind. ठीक है? Okay. Now formation of adverb. देखो, आप ये मानना कि 90% एडवर्ब्स वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ly से एंड होते हैं, लेकिन 10% अलग होते हैं. तो वो आपको, मैंने आपको पहले कह दिया, 90% ऐसा होता है. और 7th के हिसाब से तो आपको यहीं तक अगर समझेंगे तो वो भी चलेगा. मेनी एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय ly. तो यहाँ पे मेनी लिखा है ना? मेनी लिखा है, इट मीन्स मोस्ट ऑफ देम, है ना? क्विक, क्विकली, हैप्पी, हैप्पीली, केयरफुल, केयरफुली, स्लो, स्लोली, ब्रेव, ब्रेवली. ठीक है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. चलिए, सो फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब. देखो, सम एडवर्ब्स डू नॉट एंड इन ly. तो मैंने बोला ना, कहीं एडवर्ब जो होते हैं वो ly से एंड नहीं होते हैं. फास्ट, फास्ट में ही रहता है. हार्ड, हार्ड ही रहता है. लेट, लेट में ही रहता है. वेल एडवर्ब ऑफ गुड ही है. गुड,
विल। अब देखो कहीं बच्चे होंगे बोलेंगे मैम हम हार्डली तो एक वर्ड ही भी नहीं है ना। हार्डली वर्ड है लेकिन वो एडवर्ब का फॉर्म नहीं आता है, वो जनरली नाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ये समझेंगे कुछ एडवर्ब एंड नहीं होते हैं एलवाई से, वो एडवर्ब में नहीं होते, ठीक है। तो फास्ट फास्ट, हार्ड हार्ड, लेट लेट, वेल, ये एक एडवर्ब ही है गुड का। ही इज गुड, ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर, यहाँ पे प्लेयर है ना। तो गुड क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि प्लेयर क्या है, नाउन है ना। प्लेयर क्या है, प्लेयर इज अ पर्सन, प्लेयर इज अ पर्सन, है ना। तो ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। नाउ ही प्लेज वेल, वो बहुत अच्छा खेलता है, कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है, वेल। तो ही प्लेज वेल, कैसा खेलता है, वेल। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो मतलब कुछ वर्ड्स या कुछ एडवर्ब जो होते हैं वो एलवाई से एंड नहीं होते हैं, ये हमारे को समझना है, ठीक है। अब एडवर्ब्स टेल अस, चलिए रिवीजन करें फटाफट से। एडवर्ब्स टेल अस, कैसे हुआ, है ना, हाउ हैपेंड, केयरफुली, क्विकली, कब हुआ, टाइम, यस्टरडे, टुडे, वेयर, कहाँ हुआ, हियर या बाहर, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब हमेशा या कभी नहीं या कभी कभी, किस हद तक, वेरी, क्वाइट एंड टू। तो रिमेंबर एडवर्ब एड मोर इंफॉर्मेशन टू वर्ब, अनदर एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जैसे एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता था, वो नाउन के बारे में बताता था। लाइक फॉर एग्जाम्पल ही इज स्मार्ट, है ना, ही इज स्मार्ट, मैम वो लड़का स्मार्ट है, ही इज सो स्मार्ट, कैसा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा। तो सो यहाँ पे क्या था, एडवर्ब था, क्यों, क्योंकि वो एडजेक्टिव को बता रहा था, है ना। तो ये चीज आपको समझनी है। ओके, सो व्हाट इज एन एडवर्ब, फटाफट से मुझे बताए कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसको डिस्क्राइब करता है, या जिसको किसको डिस्क्राइब करता है, जल्दी जल्दी बताइए, हाँ कमेंट करो। डिस्क्राइब करता है मैम, ये वर्ब को भी करेगा, ठीक है, ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, बहुत बढ़िया, और ये जो है ये अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। ये हमें बताता है कैसे, कब, किधर, कितनी हद तक, कितनी बार कोई चीज हुई है। शी डांस ग्रेसफुली, वी विल मीट टुमारो, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस, टाइम हमें बताता है कब, है ना, व्हेन, ठीक है, और प्लेस हमें बताता है वेयर, कोई चीज कहां पर, ठीक है, कोई चीज कहां पर हुई है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो चलिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है व्हेन एन एक्शन हैपेंस, कोई एक्शन हुआ है, ठीक है। वी विजिटेड म्यूजियम येस्टरडे। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कहां पर कोई एक्शन हुआ है। चिल्ड्रन कहाँ खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, ठीक है। व्हाट, हाउ आर मोस्ट एडवर्ब्स फॉर्म्ड, कैसे एडवर्ब, मोस्ट अगर एडवर्ब देखेंगे वो एलवाई से एंड होते हैं, लेकिन हाँ कई बारी जो एडवर्ब होते हैं वो एलवाई से नहीं होते, जैसे क्विक, क्विकली, केयरफुल, केयरफुली, ब्रेव, ब्रेवली, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन अ सेंटेंस, जल्दी जल्दी। अभी पढ़ा हमने द बर्ड फ्लू क्विकली, तो क्विकली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम क्या है, व्हेन, है ना। हियर मतलब प्लेस है ना, प्लेस है ये, ठीक है। स्लोली मतलब क्या है, मैनर है, ठीक है। वेरी मतलब क्या है, डिग्री है, तो ये यस्टरडे क्या है, टाइम है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब जो कोई चीज कितनी बार हुई है, दिस इज द करेक्ट। ये प्लेस है ना, ओके, ये मैनर है और ये डिग्री है, ओके। नेक्स्ट, इन दिस सेंटेंस शी इज वेरी स्मार्ट, द वेरी इज एन एडवर्ब, वेरी क्या है, डिग्री, है ना, तो ये क्या है, एडवर्ब। अच्छा स्मार्ट क्या है, शी इज वेरी स्मार्ट, तो स्मार्ट तो एडजेक्टिव है ना, अब एडजेक्टिव है। अच्छा अब यहां पर एडजेक्टिव की विशेषता वेरी बता रहा है, तो डिग्री हद तक बता रहा है,
ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। ओके, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, कौन सा सेंटेंस जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कर रहा है। ठीक है, ही अराइव्ड अर्ली, अर्ली जल्दी आ गया, तो ये टाइम को बता रहा है। शी सिंग्स ब्यूटिफुली, है ना, ये मैनर को बता रहा है। ठीक है, अर्ली मतलब ये टाइम को बता रहा है। ठीक है, आई ऑलवेज हेल्प, ऑलवेज मतलब ये हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, और कम हेयर, हेयर इधर आओ, तो ये हमारे प्लेस को बता रहा है। तो दिस इज दी आंसर, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, चलिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, है ना, हमने एडवर्ब्स के टाइप को समझा। एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं, एडवर्ब की पोजीशन सेंटेंस में कहीं भी हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है, फ्रंट पे भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। एडवर्ब की कोई, हम यहाँ पर ये बात करें, कोई फिक्स्ड पोजीशन सेंटेंस में नहीं होती है। ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको एडवर्ब में कोई भी प्रॉब्लम आती है कि ये कैसे होगा, कब होगा, है ना, मतलब मैम कुछ भी, मतलब कुछ भी डाउट आ रहा है, तो प्लीज डू कमेंट, है ना, आप कमेंट करिए, आपको आंसर मिलेगा। बाकी आई होप मैंने जितना पढ़ाया है आपको पूरा कवरेज इसका मिल गया है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।